Hello students. So in this lecture we will discuss organic portion of GE2 paper. So it has six topics: alkyl halides, aryl halides, alcohol, phenol, ether, and aldehydes and ketones. So we will discuss one by one the preparation and reaction of all these functional groups. So first one is alkyl halide. You know, whenever carbon is attached to halogen, so where halogen may be fluorine, chlorine, bromine, or iodine, then it becomes alkyl halide. For example, when CH3 is connected to Br, then it is methyl bromide. Similarly, when ethyl group is connected to Cl, then it is ethyl bromide. So alkyl halides are also classified as 1 degree, 2 degree, 3 degree, and methyl halide. So when the degree of carbon to which halogen is attached is 1 degree, then in that case halide is 1 degree halide. If the degree of carbon is 2 degree, then in that case, right, it is 2 degree halide. And here the carbon is connected to three carbon, so it is 3 degree carbon. And since this carbon is connected to halogen, so this is a 3 degree halide. There is some difference in the reactivity of these 1, 2, and 3 degree halides. So it is important to understand that what is the structural difference between 1 degree, 2 degree, and 3 degree halides. So let us look at the preparation part. यहाँ पे अल्कीन्स का ये रिएक्शन जो है हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अल्कीन में जब हम HX का एडिशन करते हैं तो उसमें हेलो अल्कीन बनता है या अल्काइल हैलाइड बनता है। HBr, HCl या HI का अगर हम लोग नॉर्मली एडिशन करते हैं तो उसमें मार्कोनिकॉप्स एडिशन होता है। लेकिन अगर HBr के साथ हम कोई पेरोक्साइड यूज़ करते हैं, हियर ROOR इज पेरोक्साइड, तो अगर हम HBr के साथ कोई पेरोक्साइड यूज़ करते हैं तो उस केस में एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन होता है। ये हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। बट यहाँ पे अगर हम HCl का एडिशन कर रहे हैं तो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट। हियर Cl इज कमिंग एट द 2 डिग्री कार्बन, बट हियर Br इज गोइंग टू 1 डिग्री कार्बन. So in uh, in case of HCl there is Marconi oxidation, and in case of HBr in presence of peroxide it is anti-Marconi oxidation. Second is preparation from alcohol. So there are many methods by which we can prepare alkyl halides from alcohol. So first one is reaction with PCl5. So in this case you get alkyl halide plus HCl and POCl3. In case of PCl3 you get alkyl halide and H3PO3, and in case of SOCl2, which is also called Darjan's procedure or Darjan's method or Darjan's reaction, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे HCl और CO2 बनता है, और ये दोनों क्या है, गैसियस प्रोडक्ट है। ये गैसियस प्रोडक्ट होने के कारण निकल जाता है। तो इस मेथड को हम लोग अच्छा मेथड मानते हैं क्योंकि इस केस में कोई इम्प्योरिटी रिएक्शन में बचता नहीं है, तो प्यूरिफिकेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। सो दिस इज अ बेटर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ alkyl chloride. Similarly, alcohol on treatment with HX produce alkyl halide. We will also see Lucas test. ये जो अल्कोहल का HX के साथ रिएक्शन होता है इसको हम लोग लुकास रिएक्शन बोलते हैं, और इस लुकास रिएक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं लुकास टेस्ट में। जब अल्कोहल हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ ये पार्ट डिस्कस करेंगे। तो अल्कोहल रिएक्ट करता है HI से भी, HBr से भी, HCl से भी। HF के साथ रिएक्टिविटी बहुत कमज़ोर होता है और HI के साथ सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि HI सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एसिडिक है। तो HI अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एसिडिक है तो यहाँ से H प्लस आसानी से निकलेगा, और इस रिएक्शन में जो पहला स्टेप होता है दैट इज अटैक ऑफ H प्लस and followed by removal of water plus, and then that the carbocation formed reacts with X minus. So you can see the mechanism.
यहाँ पे पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप H प्लस का अटैक है, सो इट फॉर्म्स CH3CH2 OH, ऐसा कुछ बनेगा एंड देन ये निकल जाएगा और क्या होगा, X माइनस यहाँ पे अटैक कर लेगा तो ये बना लेगा CH3CH2X प्लस H2O। सो दिस इज द रिएक्शन। अब चूंकि यहाँ H प्लस का जरूरत होता है तो जो सबसे ज़्यादा H प्लस आसानी से सप्लाई करेगा उसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा, तो HI का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है। अल्कोहल का क्या रिएक्टिविटी होता है, जब हम लोग अभी अल्कोहल डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का कैसा रिएक्टिविटी होता है विथ H प्लस विथ HX। So coming to the reaction of alkyl halides. So the reactions of alkyl halides are very important for एग्ज़ाम, क्योंकि यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन हैं जो आते ही आते हैं, जैसे कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ना है, यहाँ पे ईथर सिंथेसिस पढ़ना है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम यहाँ पे RX में कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं तो वहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि चार्ज है यहाँ पे डेल्टा प्लस और यहाँ चार्ज होगा डेल्टा माइनस, तो ऑब्वियसली चूंकि R पे डेल्टा प्लस चार्ज डेवलप है तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। और चूंकि जिस तरह का रिएजेंट पहले स्टेप में पार्टिसिपेट करता है उसी के हिसाब से हम रिएक्शन का नाम रखते हैं, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल के अटैक से ये कहानी शुरू होता है, इसीलिए हम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो 3 तरीके का हो सकता है, SN1, SN2 एंड SNI। SN1 को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, ये जो 1 है दैट रिप्रेजेंट्स यूनिमोलिकुलरिटी। SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर मतलब 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, यानी उस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी जो होगा वो 2 होगा। और SNI हम लोग यूज़ करते हैं जब न्यूक्लियोफाइल जो है वो इंटरनली अटैक करता है एट द सेंटर टू विच लिविंग ग्रुप इज अटैच्ड, तो उस केस में हम इसको SNI बोलते हैं। वी विल लुक एट द एग्जांपल ऑफ SN1, SN2 एंड SNI रिएक्शंस। सो फर्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन so what are the differences between SN1 and SN2, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे हम जब SN1 और SN2 को डिफरेंशिएट करते हैं तो कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहला तो होता है कि मैकेनिस्टिक डिफरेंस क्या है दोनों में, यानी दोनों में क्या मैकेनिज्म फॉलो होता है, वो फर्स्ट डिफरेंस है। देन सेकेंड डिफरेंस होता है कि दोनों के रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसा है, जो हम लोग रेट रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं वो कैसा है। थर्ड इसमें जो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कैसा होगा SN1 और SN2 में। देन नेक्स्ट पॉइंट होता है कि इसमें प्रोडक्ट का नेचर कैसा होगा, और इस टाइप के रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का रिएक्टिविटी कैसा होगा, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का कैसा रिएक्टिविटी सीक्वेंस होगा इन केस ऑफ SN1 एंड SN2। एंड नेक्स्ट है कि कौन सा सॉल्वेंट SN1 को प्रोमोट करेगा और कौन सा सॉल्वेंट SN2 को प्रोमोट करेगा। सो ऑल दिस क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि SN1 में जो रिएक्शन होता है SN1 वो 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले RX आयनाइज होता है into R plus and X minus, and second Nu minus combines with R plus to give this product। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है, जबकि जो SN2 रिएक्शन होता है वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है SN1 और SN2 में कि SN1 इज अ 2 स्टेप रिएक्शन, SN2 इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। इन दोनों स्टेप में से
जो बॉन्ड टूटने वाला स्टेप होगा, ऑब्वियसली उसमें एनर्जी लग रहा है, जबकि बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन में तो एनर्जी रिलीज होता है। तो फिर दोनों में से स्लो रिएक्शन कौन होगा? जो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है। तो ये स्लो प्रोसेस होता है और यही होता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यानी ओवरऑल जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है दैट विल डिपेंड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन जो स्लो है। तो इस स्लो रिएक्शन में तो सिर्फ एक ही स्पीसीज शामिल है, सिर्फ आर एक्स शामिल है, इसीलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सिर्फ किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? आर एक्स के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिखते हैं आर इज इक्वल टू K into concentration of Rx, where K is the rate constant. नाउ आर प्लस जो यहाँ पे बन रहा है वो एक कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है। तो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट प्लानर होता है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है कार्बन, तो ये प्लानर इंटरमीडिएट है। और जब कभी भी प्लानर इंटरमीडिएट बनेगा तो उसमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या कर सकता है? वो न्यूक्लियोफाइल प्लेन के ऊपर से भी अटैक कर सकता है और प्लेन के नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो सपोज यू हैव दिस सबस्ट्रेट, ये एक हम कंसीडर कर रहे हैं एक कायरल सबस्ट्रेट जहाँ पे कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से कनेक्टेड है। तो ऑब्वियसली ये कायरल सबस्ट्रेट है। तो इस कायरल सबस्ट्रेट से जो कार्बोकेटायन बना वो ऐसा कार्बोकेटायन बना, और न्यूक्लियोफाइल से जब ये रिएक्ट करेगा तो इस तरीके का दो प्रोडक्ट बनेगा। एक बार प्लेन के ऊपर से जब न्यूक्लियोफाइल आएगा और एक बार प्लेन के नीचे से जब न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बी और सी में क्या हो रहा है? डिफरेंस हो गया। बी और सी का जो पोजीशन है वो क्या हो गया? यहाँ पे बी प्लेन के ऊपर है जबकि यहाँ बी प्लेन के नीचे है, यानी ये दोनों क्या है? ये दोनों एनांसियोमर है। और जब एनांसियोमर बनता है एक ही मिक्सचर में तो उस केस में हम उसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो जो प्रोडक्ट होगा SN1 में वो क्या होगा? वो एक रेसमिक मिक्सचर होगा। तो 3 पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक टू स्टेप रिएक्शन है। यहाँ पे प्लानर इंटरमीडिएट बनता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सिर्फ सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के नेचर पे या न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। देन ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो केटायन है वो कार्बोकेटायन स्टेबल कब होगा? हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए जो 3 डिग्री सबस्ट्रेट होगा यानी 3 डिग्री हलाइड अगर है तो वो SN1 में ज़्यादा रिएक्टिव होगा 2 डिग्री हलाइड से, और 2 डिग्री हलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा 1 डिग्री हलाइड से। तो ये रिएक्टिविटी हो सकता है कि कुछ सबस्ट्रेट दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसका रिएक्टिविटी बताओ। जैसे कि मान लो हम लोग यहाँ एक क्वेश्चन कर लें कि ऐसा कुछ है CH3 होल थ्राइस CCl, ये एक है। दूसरा कर दें CH3 CHCl CH3, ये एक सबस्ट्रेट है। और तीसरा सबस्ट्रेट है CH3 CH2 CH2Cl। तो ऑब्वियसली इन तीनों में अगर हम रिएक्टिविटी बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी, चूंकि ये 3 डिग्री है तो इसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा और फिर इसका होगा टुवर्ड्स SN1। तो SN1 में ये होगा ऑर्डर। SN2 में क्या ऑर्डर होगा अभी हम लोग देखेंगे। जस्ट SN2 में इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाता है। वो क्यों होता है वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। सो नेक्स्ट है कि ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है यहाँ पे वो किस तरह के सॉल्वेंट में ज़्यादा स्टेबल होगा? ऑब्वियसली अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम लोग फिजिक्स में पढ़े हो। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर किसी मीडियम का ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है? दो आयंस के बीच के फोर्स को घटा देता है। तो ऑब्वियसली आर प्लस और एक्स माइनस जो बन रहा है ये दोनों को वापस कंबाइन होके आर एक्स बनने का भी एक चांस है। तो अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट लें जो आर प्लस और एक्स माइनस के बीच में आ जाए और उन दोनों के अट्रैक्शन को कम कर दे, तो ऐसा सॉल्वेंट क्या होगा? वो हम लोग को आयन बनाने में मदद करेगा। यानी SN1 रिएक्शन जो होगा दैट विल बी फेवर्ड बाय प्रोटिक सॉल्वेंट,
क्यों प्रोटिक सॉल्वेंट से फेवर होता है वो? क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैव हाई हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। तो ये आर एक्स है, आर एक्स से जो एक इंटरमीडिएट बनेगा, कैटायन इंटरमीडिएट बनेगा और उसके थ्रू फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, दो ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ये एक ट्रांजिशन स्टेट है और ये एक ट्रांजिशन स्टेट है और बीच में एक इंटरमीडिएट है। तो जहाँ पे भी एक इंटरमीडिएट बनता है वहाँ दो मैक्सिमा बनता है, ये याद रखना है। जहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा वहाँ एक मैक्सिमा होगा, जहाँ पे एक इंटरमीडिएट है वहाँ दो मैक्सिमा होगा। अगर किसी रिएक्शन में दो इंटरमीडिएट होता है तो वहाँ पे मैक्सिमा का नंबर 3 हो जाता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी समझ में आ रहा है। वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लिखते हैं, एनर्जी लिखते हैं, और एक्स एक्सिस में लिखते हैं रिएक्शन प्रोग्रेस। तो ये सारा पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या क्या डिस्कस किए। इसमें रिएक्टिविटी डिस्कस किए, मैकेनिज्म डिस्कस किए, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम डिस्कस किए, रेट लॉ एक्सप्रेशन डिस्कस किए। प्रोडक्ट का नेचर कैसा होता है, प्रोडक्ट होता है रेसमिक मिक्सचर ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस प्लानर कार्बोकेटायन एज द इंटरमीडिएट। और ये किस मीडियम में फेवर होगा, इट विल बी फेवर्ड बाय प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट है क्या? प्रोटिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होता है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, जैसे कि H2O, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब जो सॉल्वेंट हैं ये सब में एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इस एसिडिक हाइड्रोजन के कारण इसको बोला जाता है प्रोटिक सॉल्वेंट। ऑल these सॉल्वेंट्स हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, यानी इसमें कोई इंटरमीडिएट ना बन के एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट कैसा बनेगा, पेंटा कोऑर्डिनेट, यानी इस कार्बन से अभी लिविंग ग्रुप गया नहीं है, यानी हैलाइड बन के अभी बाहर गया नहीं है, लेकिन इसी कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर चुका है। तो यहाँ पे कार्बन जो है वो 5 स्पीसीज से अटैच्ड है, इसलिए हम इसको पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल रह जाएगा और X माइनस बाहर चला जाएगा, तो हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब जिस तरफ से लिविंग ग्रुप निकलता है, न्यूक्लियोफाइल उधर से अटैक तो कर नहीं सकता है, क्योंकि लिविंग ग्रुप पे भी नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच रिपल्शन होने लगेगा और न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच जो होगा वो हिंडर करेगा कौन, X माइनस। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल हमेशा किधर से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड अटैक करेगा और फ्रॉम अ साइड विच इज अपोजिट टू द पाथ ऑफ लिविंग ग्रुप। तो X माइनस जो छोड़ के जा रहा है उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसीलिए इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। यानी अगर हम किसी रिएक्शन में देखेंगे कि ऐसा सपोज है कि यहाँ X है, यहाँ A है, ये B है और ये C है। मान लो कि ऐसा कोई हमारे पास सबस्ट्रेट है और इसको हम न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करा रहे हैं। तो अभी कहाँ है, X जो है वो राइट की तरफ है, प्रोडक्ट में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो किधर हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। और B और C को हम कोई चेंज नहीं करेंगे, बी और सी को कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होता है ये चूंकि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो फिर इसी रिएक्शन से रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड होगा। और इसमें कितने स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे दो स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, RX और NU। तो यहाँ पे चूंकि दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे 2 हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिखेंगे R इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ RX इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल का कंसेंट्रेशन अगर बढ़ा देंगे तो SN2
रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर SN1 रिएक्शन होगा तो न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन हम बढ़ा भी दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। जबकि SN2 रिएक्शन में RX का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे या न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कैसा होगा? चूंकि कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है तो इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बस होगा। सो RX will react with nucleophile through this transition state to give the product। और प्रोडक्ट का नेचर कैसा होगा? प्रोडक्ट का नेचर होगा कि यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन का होगा, यानी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उलट जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन का ये मतलब है कि लिविंग ग्रुप अगर X के साइड में था, सॉरी, लिविंग ग्रुप जो है वो राइट साइड में था, तो प्रोडक्ट में जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो लेफ्ट साइड में आ रहा है। और ये फेवर किसके द्वारा होगा? इट विल बी फेवर्ड बाय एप्रोटिक सॉल्वेंट, यानी ऐसा सॉल्वेंट जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। विदाउट विदाउट एसिडिक हाइड्रोजन अगर है कोई सॉल्वेंट तो हम उसको बोलते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो क्यों है ऐसा कि एप्रोटिक सॉल्वेंट के एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है SN2 रिएक्शन? अगर प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखो, प्रोटिक सॉल्वेंट में H प्लस आएगा और वो H प्लस क्या करेगा? इस न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल के साथ जब अटैच हो जाएगा तो फिर इस न्यूक्लियोफाइल का जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगा और ये फिर अटैक नहीं कर पाएगा, और अटैक नहीं कर पाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। इसीलिए हम ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, एंड दोज सॉल्वेंट्स आर कॉल्ड एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट होगा वो क्या होगा? जो CH3Cl होता है, यानी CH3X ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे? ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा 1 डिग्री हैलाइड से, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा 2 डिग्री हैलाइड से, और ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री हैलाइड से। 3 डिग्री हैलाइड्स में SN2 रिएक्शन नहीं होता, नो SN2 रिएक्शन, ये याद रखना है, क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होगा। ये जो ट्रांजिशन स्टेट हम लोग बना रहे हैं इसमें अगर R बड़े बड़े अगर 4 ग्रुप हो जाए यहाँ ऐसा, तो 4 अगर बड़ा बड़ा ग्रुप हो जाए, सॉरी 3 बड़ा ग्रुप हो जाए और ये 2 है, तो टोटल यहाँ पे क्राउडिंग जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए 3 डिग्री सबस्ट्रेट में SN2 रिएक्शन नहीं होता। 2 डिग्री सबस्ट्रेट में SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि हम न्यूक्लियोफाइल कैसा यूज़ करते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ करते हैं तो उस केस में SN2 रिएक्शन होता है, और अगर हम वीक न्यूक्लियोफाइल यूज़ करते हैं तो SN1 रिएक्शन होता है। बट यहाँ पे नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल को हम लोग कंसीडर अभी नहीं कर रहे हैं। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल को कंसीडर करने से एक बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का सिचुएशन आ जाता है, फिर उसमें कैटेगराइज करना कि SN1 SN2 है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। उस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। सो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल को अभी हम लोग छोड़ दे रहे हैं। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज SNI रिएक्शन। SNI रिएक्शन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इंटरनली ही अटैक करता है। तो यहाँ देखो ROH पहले SOCl2 के साथ रिएक्ट करता है, तो पहले एक HCl निकल जाता है और ROSOCl ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, और यहाँ से एक SO2 मॉलिक्यूल, यानी एक SO2 गैसियस मॉलिक्यूल है, तो वो निकलता है और Cl इधर से अटैक करता है। अब चूंकि जिधर ओ जिधर अटैच्ड होगा, यानी जिस तरफ लिविंग ग्रुप है उस तरफ से ही तो Cl अटैक कर रहा है, यहाँ कोई बैक साइड अटैक नहीं हो रहा है। तो चूंकि ये जो इंटरनल अटैक है फ्रॉम द सेम साइड to which this oxygen is bonded with the carbon, that is why there is no change in configuration। ये याद रखना है कि जब SNI रिएक्शन होगा
तो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ देखो, ये अल्कोहल है, अल्कोहल में OH ग्रुप जो है वो किधर है, राइट साइड में है। तो जो यहाँ पे फाइनली न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ कौन है, Cl माइनस है न्यूक्लियोफाइल। तो जहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, OH इस केस में लिविंग ग्रुप है, जिस तरफ लिविंग ग्रुप था उसी तरफ से Cl भी अटैच हो गया, इसीलिए यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं है। ये है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर SNI का। तो तुम लोग को मान लो ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया जाए कि SOCl2 है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे उस प्रोडक्ट में स्टीरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पे स्टीरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो लिखे बिना नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर स्टीरियो केमिस्ट्री दे के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि SOCl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ SNI रिएक्शन। तो हम लोग को इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना है। Cl will be at the same position as that of OH. So this is all about nucleophilic substitution. We are moving to the next important reaction, that is types of nucleophilic substitution. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग अलग अलग टाइप, अच्छा टाइप तो हम लोग पढ़ लिए SN1 SN2। यहाँ पे टाइप का ये मतलब है कि हम कैसे कैसे अलग अलग न्यूक्लियोफाइल के साथ अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो अगर हम H2O यूज़ करें, यानी सॉल्वेंट के तौर पे H2O भी हम लोग ले सकते हैं, या सॉल्वेंट के तौर पे हम अल्कोहल भी ले सकते हैं। तो उस केस में अगर H2O ले रहे हैं तो उसको हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, अगर अल्कोहल लेंगे तो उस केस में हम उसको अल्कोहलिसिस बोलेंगे। तो RX जब H2O से रिएक्ट करेगा तो ROH बनेगा और HX बनेगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। तुम लोग को थोड़ा याद आ रहा होगा कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कुछ पढ़े थे कि एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो होता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, यानी वो अटैक कर सकता है दो अलग अलग सेंटर के थ्रू। जैसे कि यहाँ देखो CN माइनस, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का काम कर सकता है, और कार्बन भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का काम कर सकता है। सिमिलरली थायोसाइनाइड SCN माइनस आयन, यहाँ पे भी हम लोग को दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दिखाई दे रहा है। NO2 माइनस आयन, यहाँ पे भी हम लोग को दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो सकता है या दो पॉइंट ऑफ अटैक हो सकता है, उसको हम बोलते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बी का मतलब होता है दो, तो दो ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो उसको हम एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में अगर दो सेंटर है तो ऑब्वियसली दो तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तो जब हम अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन कराते हैं सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो उस केस में बनता है अल्काइल साइनाइड RCN। जबकि अगर हम रिएक्शन कराते हैं AgCN के साथ, तो उस केस में रिएक्शन बनता है अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल दो और कुछ इसमें रिएक्शन प्रोडक्ट बता के एक्सप्लेन करो। तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से 8-10 नंबर का एग्जाम्पल दे के पूछा पूछा जाएगा अगर तो ये याद रखना है कि NaCN एक आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड अगर होगा, यानी इस केस में क्या होगा, आयनिक कंपाउंड होने का ये मतलब है कि Na प्लस और Cn माइनस ये आयन के फॉर्म में होगा। तो आयन के फॉर्म में होने से क्या हुआ कि Cn माइनस जो है वो फ्री फॉर्म में है, ऐसे फॉर्म में है। अब यहाँ पे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन है, नाइट्रोजन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। जिसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो उसका दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि वो
इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी होता है। तो अगर किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका मतलब है कि उसका इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी कम है, या हम बोल सकते हैं कि किसी को डोनेट करने का टेंडेंसी ज़्यादा है। तो कार्बन और नाइट्रोजन को अगर हम कंपेयर करें, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, तो ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है तो अटैक किसके थ्रू होगा? कार्बन के थ्रू अटैक होगा। इसलिए उस केस में प्रोडक्ट बनता है RCN, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल साइनाइड। जबकि AgCN कैसा कंपाउंड है? AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड है AgCN। तो यहाँ पे कार्बन तो फ्री फॉर्म में नहीं है, वो तो ऑलरेडी Ag के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पे फ्री कौन है अटैक करने के लिए? यहाँ पे अटैक करने के लिए सिर्फ नाइट्रोजन ही फ्री है। तो नाइट्रोजन के थ्रू अगर अटैक होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? RNC बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड। सिमिलरली अगर हम रिएक्शन कराते हैं NaNO2 के साथ, तो NaNO2 में अगेन NaNO2 जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है। तो अगर NaNO2 आयनिक कंपाउंड है तो उसमें क्या रहेगा? उसमें से हम लोग को मिलेगा Na प्लस और NO2 माइनस। NO2 माइनस का कहने का मतलब हुआ कि ये ऐसा कंपाउंड है, ON डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का देखें, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे सिर्फ लोन पेयर है, जबकि ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज है। तो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा ऑब्वियसली वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो इस केस में ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, और अगर ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है तो रिएक्शन इसी के थ्रू होगा। तो उस केस में बनता है RONO, इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइट। जबकि अगर AgNO2 के साथ रिएक्शन है तो AgNO2 कैसा कंपाउंड होगा? AgNO2 एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ऐसा। तो ये है AgNO2। अब यहाँ पे किसी पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, सिर्फ क्या है? सब पे लोन पेयर है। तो अगर सिर्फ लोन पेयर है तो फिर हम कौन सा थियरी लगाएंगे कि अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या हुआ? मोर न्यूक्लियोफिलिक। मोर न्यूक्लियोफिलिक अगर है तो फिर जब हम रिएक्शन कराएंगे AgNO2 के साथ, तो उस केस में रिएक्शन किसके थ्रू होगा? नाइट्रोजन के थ्रू होगा, और उस केस में प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रो अल्केन। तो ये हम लोग समझ गए कि एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, उसका कुछ एग्जाम्पल, और वो कैसे हम अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बना सकते हैं यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट। नेक्स्ट इज विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अलग अलग न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं तो प्रोडक्ट बदल रहा है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हम क्या लेते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड। तो सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड ले सकते हैं, और उसके साथ हम लोग क्या लेते हैं? RX। क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट इज विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, तो वहाँ बताना होगा इट इज अ सिंथेसिस in which we use alkyl halide and sodium or potassium alkoxide to produce ether। चूंकि ये ईथर बनाने का मेथड है इसलिए इसको हम विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस बोलते हैं। अब इस रिएक्शन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है, और यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो RO माइनस है, RO माइनस, ये खुद अपने आप में एक बेस है। ये न्यूक्लियोफाइल का तो काम करता ही है, ये बेस बेस का भी काम करता है। तो अगर ये बेस का काम करता है तो RX में क्या हो सकता है? हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि अल्काइल हलाइड में डीहाइड्रोहेलोजनेशन से एल्कीन बन जाता है। तो RX ऐसा होना चाहिए जिसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होने का चांस या तो नहीं हो, या अगर चांस हो तो कम हो। इसीलिए हम ऐसा RX चुनते हैं जिसमें एलिमिनेशन रिएक्शन ना हो।
तो एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट ये बीएससी लेवल में भी पूछा जाता है कि अगर इस कंपाउंड को हम लोग को बनाना है तो फिर इसको दो तरीके से बना सकते हैं ना। कैसे? कि हम या तो यहाँ से क्लीवेज कर दें, या तो हम क्लीवेज यहाँ से करें, या तो हम क्लीवेज यहाँ से करें। तो यहाँ से अगर हम क्लीवेज कर रहे हैं तो CH3O अलग हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्काइल हैलाइड। और अगर यहाँ से क्लीवेज करते हैं तो ये हो जाएगा अल्काइल हैलाइड CH3X, और ये हो जाएगा एल्कोक्साइड। यानी दो तरीका है ये करने का। क्या क्या तरीका है? कि हम या तो इसके साथ X को अटैच कर दें तो CH3X हो जाएगा, और इसके साथ हम सोडियम अटैच कर दें तो ये एल्कोक्साइड हो गया। और दूसरा रास्ता है कि हम इसको CH3O माइनस रहने दें और हम X यहाँ अटैच कर दें। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड है वो एक 1 डिग्री हैलाइड है, जबकि यहाँ एक 3 डिग्री हैलाइड है। तो यहाँ देखो, इसमें अल्फा कार्बन तो है लेकिन इसमें कोई बीटा कार्बन नहीं है। अगर बीटा कार्बन है ही नहीं तो बीटा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, यानी यहाँ एलिमिनेशन का कोई मसला नहीं है। जबकि यहाँ पे अगर ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा कार्बन है, या ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो यहाँ तो बहुत आसानी से एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकता है। तो हम ऐसा रिएजेंट चुनते हैं जिसमें कि कोई कॉम्पिटिटिव रिएक्शन ना हो। हम जो रिएक्शन चाहते हैं सिर्फ वही रिएक्शन हो, कोई साइड रिएक्शन ना हो। तो फिर बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि हम CH3X लें और ये ले लें, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोडियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम टर्ड, चूंकि टर्शियरी है, टर्ड ब्यूटॉक्साइड। तो अगर हम लेंगे 1 डिग्री हैलाइड और सोडियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड तो इस कंपाउंड का जो यील्ड होगा, इस कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होगा परसेंटेज टर्म में, वो बहुत हाई होगा, क्योंकि कोई साइड रिएक्शन नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इसको बनाने के लिए रिएजेंट बताओ, तो रिएजेंट ये अगर कोई रिएजेंट बता देगा तो वो गलत आंसर हो जाएगा। सही रिएजेंट क्या है? ये है सही रिएजेंट। सो नेक्स्ट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग कुछ पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, जब पढ़े थे अल्कीन का प्रिपरेशन अल्काइल हैलाइड से। तो RX में यानी अल्काइल हैलाइड में जब हम लोग बेस ऐड करते हैं तो उससे अल्कीन बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। उसके लिए रिएजेंट क्या लेते हैं? रिएजेंट लेते हैं अल्कोहलिक KOH या इथानॉलिक KOH लिखा हुआ मिलेगा, या अल्कोहलिक KOH। बात एक ही है, क्योंकि इथानॉल भी एक अल्कोहल ही तो है। तो अल्कोहलिक KOH या इथेनॉलिक KOH के साथ जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है? बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से एक X निकल जाता है। इस केस में Br है तो बनेगा HBr, अगर यहाँ Cl होता तो बनता HCl। तो अगर एक से ज़्यादा बीटा कार्बन होगा, जैसे इस केस में ये अल्फा कार्बन है जहाँ पे ब्रोमीन अटैच्ड है और इसके दोनों तरफ ही बीटा कार्बन है, तो इस केस में हम उधर से बीटा बीटा हाइड्रोजन निकालते हैं जिधर से जो डबल बॉन्ड बनेगा वो ज़्यादा अल्काइलेटेड होगा। ऑलरेडी ये पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, यानी जो G1 का लेक्चर था उसमें हम लोग ये पार्ट डिस्कस कर चुके हैं कि उस केस में क्या होता है, ज़्यादा अल्काइलेटेड प्रोडक्ट अगर बनेगा तो वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, जबकि यहाँ पे 2 ही अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये मेजर प्रोडक्ट होगा। दिस इज कॉल्ड सेट्जेफ और जेटसेप्स रूल। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट होगा कि व्हाट इज सेट्जेफ्स रूल, एक्सप्लेन सेट्जेफ्स रूल यूजिंग एग्जाम्पल। जो भी रूल हम लोग पढ़े हैं, मार्कोनी-कॉप्स रूल पढ़े हैं, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल पढ़े हैं, सेट्जेफ रूल पढ़े हैं, दीज ऑल रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन उससे ऐसा ही होता है कि एक्सप्लेन दिस रूल यूजिंग एग्जाम्पल। तो वहाँ पे एक दो एग्जाम्पल यूज करके, जो कॉमनली साइटेड एग्जाम्पल होता है वो एग्जाम्पल यूज करके एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट इज अराइल हलाइड्स, कि जब
बेंजीन रिंग से अटैच्ड होता है कोई हेलोजन, तो उस केस में हम उसको एराइल हैलाइड बोलते हैं। जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, आयोडोबेंजीन है, अगर फ्लोरीन अटैच्ड होगा तो वो फ्लोरोबेंजीन हो जाएगा। प्रिपरेशन, ये एक नेम रिएक्शन है, सैंडमेयर और गैटरमैन रिएक्शन। सैंडमेयर और गैटरमैन रिएक्शन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सैंडमेयर रिएक्शन और व्हाट इज गैटरमैन रिएक्शन, या कंप्लीट द रिएक्शन में भी पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं, ये G3 में हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी अभी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अगर डाइजोनियम सॉल्ट डायरेक्ट याद रख लेना है कि डाइजोनियम सॉल्ट में जब हम HX के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Cu1 सॉल्ट, Cu1 हैलाइड, वन हैलाइड लिखने का क्या मतलब है, कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट 1 में होता है, तो Cu(X2) मत लिख देना। यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो क्या है, Cu(X) है, कॉपर 1 स्टेट में है। तो जब हम डाइजोनियम सॉल्ट को HX के साथ यानी HCl, HBr के साथ रिएक्ट करेंगे, तो उस केस में हम जब HCl लेंगे तो ये CuCl हो जाएगा, जब HBr लेंगे तो ये CuBr हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, जब CuCl और HCl ले रहे हैं तो यहाँ क्लोरीन आ जाएगा, और HBr और CuBr लेंगे तो यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। इससे हम आयोडोबेंजीन नहीं बना सकते, ये याद रखना है। दिस इज ओनली फॉर क्लोरो एंड ब्रोमो बेंजीन। लेकिन अगर हम CuCl या CuBr के बजाय सिर्फ कॉपर एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, देन दिस रिएक्शन बिकम्स गैटरमैन रिएक्शन। तो गैटरमैन रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है वो सिर्फ कॉपर, मेटालिक कॉपर, यानी कॉपर का हम क्या कर लेते हैं, पाउडर यूज कर लेते हैं, बुरादा। तो उस केस में ये गैटरमैन रिएक्शन हो जाता है। तो अगर पूछा जाएगा व्हाट इज सैंडमेयर एंड गैटरमैन रिएक्शन, तो हम बताएंगे कि सैंडमेयर रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच डाइजोनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विथ HCl और HBr in presence of CuCl और CuBr to form क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन। तो ये स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। सिमिलरली गैटरमैन रिएक्शन क्या है, गैटरमैन तो यहाँ पे बताएंगे कि व्हेन copper metal is used as a catalyst instead of Cu1 halide, then the reaction becomes Gattermann reaction. आयोडोबेंजीन बनाने का क्या तरीका है कि हम डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे, यहाँ पे X माइनस लिख लो, डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे, उसके साथ जब हम Ki से उसको ट्रीट करेंगे तो बन जाएगा आयोडोबेंजीन। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अराइल हैलाइड्स। अराइल हैलाइड्स में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो अल्काइल हैलाइड्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा अलग होता है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ ये होगा कि कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ अराइल एंड विनाइल हैलाइड्स विद दैट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि हम कंपेयर करेंगे कि अल्काइल हैलाइड से अराइल और विनाइल हैलाइड कैसे अलग है। तो यहाँ देखो ये विनाइल हैलाइड है, ये विनाइल ग्रुप है और ये अराइल ग्रुप है। तो यहाँ हम रेजोनेंस के मदद से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या करोगे, यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें बाकी और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, वो तुम लोग खुद से बना लेना, इसको देख के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के मदद से हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे, और हाइब्रिड स्ट्रक्चर में दिखाते हैं कि जो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड है उसके बीच में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे जो कार्बन और हेलोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा, उससे क्या होगा, ये X माइनस बन के आसानी से नहीं निकल पाएगा। ऐसा कुछ अल्काइल हैलाइड में होता नहीं है, लेकिन यहाँ तो हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। सिमिलरली जो विनाइल हैलाइड होता है उसमें भी एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है। यानी अराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड दोनों सेम नेचर का है, दोनों में ही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है। और क्या क्या हो रहा है यहाँ कुछ थोड़ा अलग, ये जो कार्बन है, जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है।
ये एक sp2 हाइब्रिड कार्बन है। सिमिलरली यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिड कार्बन है। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन से क्या होगा, sp2 हाइब्रिड कार्बन अगर है तो उसका CX जो बॉन्ड बनेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, किसके तुलना में, अल्काइल हैलाइड के तुलना में। और क्या फैक्टर है यहाँ, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है अराइल हैलाइड में या विनाइल हैलाइड में, तो ये जो पाई बॉन्ड है उसके कारण न्यूक्लियोफाइल को रिपल्सन फील होगा। तो ये जो अलग अलग फैक्टर है इसके कारण विनाइल और अराइल हैलाइड का रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड से कम हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि हम कंपेयर करके क्या बताएंगे, कंपेयर करके बताएंगे कि अराइल एंड विनाइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि क्यों है लेस रिएक्टिव, उसका ये सब कारण है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन सी एंड एक्स इन अराइल एंड फिनाइल हैलाइड्स, इसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना पड़ेगा। सेकेंड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल्स इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है उसको पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल करता है। थर्ड, विनाइल और अराइल हैलाइड में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp2 और हेलोजन का जो p ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेगा, तो sp2 एंड p ओवरलैप इन अराइल हैलाइड्स एंड विनाइल हैलाइड इज स्ट्रॉन्गर देन sp3 एंड p ओवरलैप इन अल्काइल हैलाइड्स। एंड लास्ट पॉइंट इज कि अगर SN1 रिएक्शन होता तो SN1 रिएक्शन में क्या बनता, केटायन बनता ना, तो फिनाइल केटायन बनता और विनाइल केटायन बनता, और ये दोनों ही केटायन अनस्टेबल होता है in comparison to alkyl cation. So because of these following four factors, aryl and vinyl halides are less reactive than alkyl halide। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो फिर अगर ये रिएक्टिविटी वाइज अलग है तो फिर मैकेनिज्म भी अलग होगा, किसमें, अराइल एंड विनाइल हैलाइड्स में। तो अराइल हैलाइड्स में हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। OH माइनस जब यहाँ अटैक करता है तो डायरेक्ट X माइनस को नहीं निकाल देता है। इसमें क्या होता है, इस मैकेनिज्म का नाम है एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, यानी पहले OH माइनस ऐड होता है और तब फिर X माइनस यहाँ से निकलता है थ्रू अ रेजोनेंस हाइब्रिड इंटरमीडिएट। तो OH माइनस जब अटैक करता है तो इस तरीके से ये OH आ गया और ये पाई बॉन्ड इधर खुलता है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाता है और ये नेगेटिव चार्ज फिर क्या हो जाता है, पूरे रिंग में डीलोकलाइज हो जाता है। और फिर लास्ट में क्या होगा, यहाँ से एक X माइनस निकल जाएगा और वापस से ये एक एरोमेटिक रिंग बन जाएगा। तो देखो यहाँ दो स्टेप हो रहा है, पहले OH माइनस अंदर आया, इस स्टेप को हम एडिशन बोलते हैं, और फिर इस स्टेप में X माइनस बाहर गया, इसको हम एलिमिनेशन बोलते हैं। तो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड SNAR mechanism, substitution nucleophilic in aryl halides। So this becomes SNAR, इसी का दूसरा नाम है एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। तो यहाँ जो नेगेटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो इंटरमीडिएट बन रहा है, इस इंटरमीडिएट में नेगेटिव चार्ज कहाँ अपीयर हुआ, नेगेटिव चार्ज या तो ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, पैरा पोजीशन पे आ रहा है, या फिर से ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है। यानी नेगेटिव चार्ज अपीयर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विच गेट्स स्टेबिलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबिलाइज करेगा, पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का ज़रूरत होता है और नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ज़रूरत होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो ये जो इंटरमीडिएट है वो ज़्यादा स्टेबिलाइज हो जाएगा और रिएक्शन ज़्यादा आसानी से होने लगेगा। हेंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लाइक NO2 ग्रुप अगर अटैच्ड हो जाए कहाँ पे, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखो, ये हम 4 सबस्ट्रेट ले रहे हैं। इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ सबस्ट्रेट दे दिया जाए और पूछा जाए कि इन सारे सबस्ट्रेट्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स OH माइनस अरेंज कर दो।
तो यहाँ पे एक ही लॉजिक काम करता है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, उतना ही ज़्यादा रिएक्टिविटी उसका हाई होगा। तो यहाँ चूंकि 3 NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और यहाँ क्लोरोबेंजीन में एक भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो इसका रिएक्टिविटी सबसे कम होगा। तो एक मिलता जुलता और रिएक्शन है जिसको हम लोग बेंजाइन मैकेनिज्म बोलते हैं। इसको हम एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म बोलते हैं, यानी उसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पहले एलिमिनेशन होता है और फिर एडिशन होता है। एलिमिनेशन किसका होता है? एलिमिनेशन होता है यहाँ पे H प्लस का। तो H प्लस ये उतना स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं है कि यहाँ से H प्लस बहुत आसानी से निकल जाए, इसलिए जो हम यहाँ पे बेस यूज करते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं? पोटाशमाइड KNH2। तो KNH2 में NH2 माइनस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, वो क्या करता है? वो H प्लस को पहले निकालता है, इसीलिए ये एलिमिनेशन स्टेप है। तो पहले H प्लस को निकालेगा NH2 माइनस, और फिर ये नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा और Cl माइनस को बाहर कर देगा। तो ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है, यहाँ पे देखो एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यानी बेंजीन प्लस आइन है ये। बेंजीन तो था ही पहले से, ये बेंजीन तो पहले से था, लेकिन अब क्या आ गया? इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो बेंजीन प्लस आइन मिलके क्या बन गया है? बेंजाइन बना है। तो इस इंटरमीडिएट का नाम है बेंजाइन बिकॉज ऑफ दिस ट्रिपल बॉन्ड। अब क्या होगा? अब NH2 माइनस फिर से इस पे अटैक करेगा। तो NH2 माइनस फिर से जब अटैक करेगा, तो अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा। तो NH2 यहाँ गया और ये नेगेटिव चार्ज आ गया। तो फिर यहाँ पे आखिर अमोनिया का क्या रोल है? अमोनिया बाद में एक H प्लस सप्लाई करता है। तो H प्लस सप्लाई करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो H प्लस लेगा, तो फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बेंजाइन मैकेनिज्म में पहले क्या हुआ? बेंजाइन मैकेनिज्म में पहले H प्लस का लॉस हुआ, फॉलोड बाय Cl माइनस का लॉस, यानी यहाँ हो रहा है पहले एक एलिमिनेशन और फिर हो रहा है यहाँ एक एडिशन। किसका एडिशन? NH2 माइनस और H प्लस का एडिशन। तो इसीलिए इस मैकेनिज्म को हम लोग एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म या बेंजाइन मैकेनिज्म बोलते हैं। क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज बेंजाइन मैकेनिज्म फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अराइल हैलाइड? तो ये बता देना पड़ेगा कि जब हम क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करते हैं KNH2 से इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो बनता है एनिलीन। ये कंपाउंड क्या है? ये है एनिलीन। नाम भूल जाओ तो कोई बात नहीं है, नाम मत लिखना, लेकिन ये स्ट्रक्चर तो बना देना। और फिर एक्सप्लेन कर देना है दैट इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, एलिमिनेशन फॉलोड बाय एडिशन। एलिमिनेशन किसका हो रहा है? HCl का एलिमिनेशन टू फॉर्म बेंजाइन, एंड which adds up NH2 minus followed by H plus to give the substitution product। तो यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हैलाइड्स विद अल्काइल हैलाइड्स। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, वो बनाना पड़ेगा, और ये चारों पॉइंट जो हम लोग डिस्कस किए। सेकंड, कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रहेगा तो उससे रिएक्शन जो है वो आसानी से हो जाता है। सो नेक्स्ट इज अल्कोहल। तो जैसे हम लोग अल्काइल हैलाइड देखे थे, वैसे ही अल्कोहल भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कार्बन। और कुछ सिंपल अल्कोहल का यहाँ नाम लिखा हुआ है। ये मिथाइल अल्कोहल है या मिथानॉल बोलते हैं इसको। दिस इज इथाइल अल्कोहल और इथानॉल। दिस इज प्रोपाइल अल्कोहल और प्रोपानॉल, एंड दिस इज आइसोप्रोपानॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल का रिएक्शन, सॉरी अल्कोहल का प्रिपरेशन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम किस में ऐड करते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम ऐड करते हैं, यानी हम करते हैं किसका? एडिशन ऑफ RMgX टू
एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में हम एडिशन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो उससे हम लोग को अलग अलग तरह का अल्कोहल मिलता है। 1 डिग्री अल्कोहल जो बनाना है अगर, तो वो हम कहाँ से बनाएंगे, मीथानल से या फॉर्मल्डिहाइड से। फॉर्मल्डिहाइड का दूसरा नाम मीथानल है। तो इसमें अगर हम आर एम जी एक्स का एडिशन करेंगे, तो आर जो है, यहाँ पे ये याद रखना है कि आर है नेगेटिव पार्ट और एम जी है पॉजिटिव पार्ट। जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव पार्ट पे। पॉजिटिव पार्ट कौन है, ये है पॉजिटिव पार्ट, और ऑक्सीजन है नेगेटिव पार्ट। तो आर जो है वो यहाँ अटैक करेगा और एम जी किसके साथ चला जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, तो ओ एम जी एक्स ऐसा बन गया। फिर एच टू ओ से हम इसको ट्रीट करते हैं, तो ये इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और ये ओ एच बन जाता है। तो बस इस रिएक्शन को याद रखना है। अब डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ पे हम कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं, यानी कौन सा एल्डिहाइड कीटोन ले रहे हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर हम मीथानल या फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो मीथानल या फॉर्मल्डिहाइड लोगे तो उसमें 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर हम कोई दूसरा एल्डिहाइड ले लिए, यानी यहाँ अगर अल्काइल ग्रुप एक कनेक्ट हो गया, तो उस केस में बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। ये जो आर प्राइम है, आर प्राइम कहाँ से आ रहा है, आर प्राइम आ रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। और अगर हम कोई कीटोन लेंगे, आर सी ओ आर प्राइम, यानी तो यहाँ पे तो दो अल्काइल ग्रुप पहले से लगा हुआ है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और अल्काइल ग्रुप आ रहा है, तो उस केस में क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। क्वेश्चन क्या होगा, हाउ कैन यू प्रिपेयर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बताना पड़ेगा कि अगर हम रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर हम कोई और एल्डिहाइड ले लिए अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, तो उस केस में 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और अगर कोई हम कीटोन ले लिए तो उसमें 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ऐसा ले सकते हैं, ये कंप्लीट द रिएक्शन में भी क्वेश्चन हो सकता है कि अगर रिएक्शन में हम ये कीटोन ले लें और यहाँ पे क्या दे दें, पहला दे दें CH3 MgBr और दूसरा दे दें वाटर। वाटर भी रह सकता है या एसिड रह सकता है, मतलब H3O प्लस भी लिखा रह सकता है, एक ही बात है। थोड़ा अगर एसिड दे देते हैं तो हाइड्रोलिसिस जल्दी हो जाता है। तो हम प्रोडक्ट बनाएंगे, तो यहाँ देखो आर पार्ट कौन है, आर पार्ट यहाँ CH3 है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, O तो OH हो जाएगा, ये तो पहले से ही था, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं कि कौन सा सबस्ट्रेट में हम कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे तो क्या बनेगा। और क्वेश्चन यहाँ से क्या हो सकता है, क्वेश्चन ये हो सकता है कि CH3 COH CH2 CH3 CH3, ये हम कैसे बनाएंगे, यूजिंग ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस, यूजिंग ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस यूज करके ये कंपाउंड बनाना है। तो आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले लें। या तो हम इस कंपाउंड में क्या ले लें, हम दो कार्बन तो ले लिए, CH3 ले लिए, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमको क्या लेना पड़ेगा, ये वाला पार्ट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम क्या लेंगे, CH3CH2MgBr। या हम क्या ले सकते हैं, या हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, CH2CH3 ले सकते हैं और इसके साथ हम क्या ले लें, इसके साथ हम CH3MgBr ले लें। तो ये दोनों ही आंसर सही होगा। ठीक है, तो अल्कोहल का ये प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। सेकेंड है एस्टर का हाइड्रोलिसिस। एस्टर में तुम लोग जानते हो कि दो पार्ट होता है, एक अल्कोहल से आया हुआ पार्ट रहता है, दूसरा एसिड से आया हुआ पार्ट रहता है। तो एस्टर का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक एसिड मिलेगा
और एक अल्कोहल मिलेगा। जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो RCOH और R प्राइम OH मिलता है, और अगर बेस के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहाँ एसिड ना मिलके एसिड का सॉल्ट मिलता है। क्यों बेसिक मीडियम में सॉल्ट मिलेगा? क्योंकि बनेगा तो एसिड, लेकिन मीडियम चूंकि बेसिक है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी एल्डिहाइड और कीटोन को जब हम रिड्यूस करते हैं तो बनता है अल्कोहल। और उसके लिए हमको क्या रिएजेंट चाहिए? कोई भी हाइड्राइड सोर्स लाइक या तो NaBH4 रहेगा या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रहेगा, LiAlH4। तो ये दोनों से हम लोग को क्या मिलता है? H माइनस मिलेगा। ये हाइड्राइड सोर्स है, H माइनस देता है। H माइनस कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे, तो ऑब्वियस है कि H माइनस कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो इस कार्बन पे H आ जाएगा। और सेकंड, ये पहला रिएजेंट होता है। सेकंड यहाँ पे क्या हम लोग लेते हैं? H प्लस ले लेते हैं। तो ये जो O माइनस है, इस O माइनस को H प्लस दे देंगे तो OH बन जाएगा। तो ये H प्लस जनरली कहाँ से आ जाता है? जब हम इथानॉल सॉल्वेंट लेते हैं तो उससे H प्लस आ जाता है। तो अलग से H प्लस लिखा हुआ नहीं भी रहेगा तो रिएक्शन कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ देखो, ये हम लोग CH3CHO ले रहे हैं और रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं NaBH4। तो यहाँ से एक H ऐड करो यहाँ, और O पे एक H ऐड करो, तो क्या बन जाएगा? ये CH3, यहाँ पे पहले से एक H था तो CH3 और एक H और आ गया तो CH3CH2OH हो गया। सिमिलरली अगर ये क्वेश्चन रहे कि हमारे पास है CH3CO CH3 और इसको हम लोग क्या दे रहे हैं? NaBH4 इन CH3OH, मिथानॉल ले लिए। क्या बनाओगे प्रोडक्ट? CH3, C पे एक H ऐड करो, यहाँ पे OH ऐड, O पे एक H ऐड करो, और ये CH3। सो दिस इज द प्रोडक्ट। तो अगर यहाँ पे देखो रिडक्शन ऑफ कीटोन अगर हम लोग कर रहे हैं, तो ये रिडक्शन ऑफ कीटोन किए तो उससे कैसा अल्कोहल बना? यहाँ तो 2 डिग्री अल्कोहल ही बन रहा है ना। 3 डिग्री अल्कोहल तो किसी भी सूरत में बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम एक H ऐड कर रहे हैं तो हर हालत में इस कार्बन का जो डिग्री होगा वो क्या होगा? 2 डिग्री हो सकता है मैक्सिमम। तो इस केस में यानी हम रिडक्शन के थ्रू 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बना सकते। 3 डिग्री अल्कोहल अभी हम लोग एक मेथड सीखे कि 3 डिग्री अल्कोहल कहाँ से बना सकते हैं? ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस से बना सकते हैं, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल इस रिडक्शन वाले मेथड से नहीं बना सकते। नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल जब HX के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है अल्काइल हैलाइड और H2O। ये ल्यूकास टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूकास टेस्ट हम कैसे यूज करते हैं? टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसमें हम लोग करते क्या है? अल्कोहल के साथ लेते हैं ल्यूकास रिएजेंट, यानी 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, और जो हमारा अल्कोहल होता है उसको तीनों टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा बांट देते हैं, और उसमें हम ऐड करते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है? एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसनट्रेटेड HCl। तो हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है, और बताना है कि वो जो 3 टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। अगर तुरंत से प्रिसिपिटेशन हो गया, तो तुरंत से अगर प्रिसिपिटेशन हो गया यानी सॉल्यूशन जो है वो क्या होने लगेगा? टर्बिड दिखने लगेगा। टर्बिड मतलब पहले अगर सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट था तो वो ओपेक होने लगेगा, जिसको हम टर्बिडिटी बोलते हैं। तो अगर टर्बिडिटी तुरंत हो जाए तो उस केस में हम उसको 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। अगर ये टर्बिडिटी 4-5 मिनट के बाद आए तो वो 2 डिग्री अल्कोहल है, और अगर ये टर्बिडिटी हीटिंग के बाद आए तो फिर वो 1 डिग्री अल्कोहल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है।
क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि हम लोग मैकेनिज्म पढ़े थे अभी कुछ देर पहले कि R है और ये CH2OH है सपोज, इसको हम प्रोटोनेट किए, H+ दिए, तो क्या बना? RCH2OH H पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से ये क्या बन जाएगा? RCH2+ और H2O। अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल होता तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन तो ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी फास्ट होता है, जबकि 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी स्लो होता है। तो इसीलिए टर्बिडिटी 3 डिग्री अल्कोहल के साथ तुरंत आ जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ टर्बिडिटी सिर्फ हीटिंग करने के बाद आता है। नेक्स्ट है स्टेरिफिकेशन। अल्कोहल को जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो उस केस में बनता है एस्टर। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल होता है तो उसको अगर हम ऑक्सीडाइज करें, ये कॉमनली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CrO3 इन एसिडिक मीडियम, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, या KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम, या KMnO4 इन एसिडिक मीडियम भी चलेगा, दोनों में ही ये ऑक्सीडेशन करता है, KMnO4 in acidic medium. These are commonly used oxidizing agent. तो 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड में, और ये यहाँ रुकता नहीं है, अपने आप ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में ऑक्सीडाइज होता है, और 3 डिग्री अल्कोहल मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। लेकिन जब हम पीसीसी यूज करते हैं, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, पीसीसी होता क्या है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। एग्जाम में पूछा जाएगा तो पीसीसी ही लिखा हुआ रहेगा। जब हम पीसीसी यूज करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन के वो एल्डिहाइड पे ही रिएक्शन रुक जाता है। तो इस रिएक्शन को देखो, अगर हम K2Cr2O7 और एसिड ले लेंगे तो इथानॉल से हम लोग को सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, लेकिन अगर हम पीसीसी यूज करेंगे तो एल्डिहाइड पे रुक जाएगा रिएक्शन, यानी CH3CHO बनेगा। सिमिलरली इस अल्कोहल को अगर हम ट्रीट कर रहे हैं K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या मिला? कीटोन मिल गया। देन रिएक्शन विद सोडियम। ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल में यहाँ जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो जब सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये कॉमन रिएक्शन है कि जब भी एसिडिक कंपाउंड होगा वो अगर मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उससे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट एक पीसीसी वाला रिएक्शन है, और इस तरीके का रिएक्शन है कि कोई अगर ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देंगे इनटू कार्बोनिल कंपाउंड। अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन बना के छोड़ देंगे, और अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो उस केस में बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्सेप्शन क्या है? पीसीसी, जो एल्डिहाइड पे ही रिएक्शन को रोक देता है। सो नेक्स्ट इज फिनॉल्स। फिनॉल का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एसिडिक होता है, ये अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक होता है। क्यों ऐसा है? ये रीज़न अभी जानने का ज़रूरत नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है, उसको हम लोग छोड़ देंगे, ये क्वेश्चन आने का चांस भी नहीं होगा। तो सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी के तौर पे याद रख लेना है कि इट इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल एंड लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। बनाने का क्या मेथड है? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड है कि हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं प्रोपीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, तो बनता है क्यूमीन, और इसका हम एयर ऑक्सीडेशन कराते हैं। ये जो O2 के साथ है, ये इस स्टेप को क्या बोलेंगे? एयर ऑक्सीडेशन। तो एयर ऑक्सीडेशन कराने से बन जाता है फिनॉल, और साथ में बनता है एसीटोन। ये दोनों ही कमर्शियली जो है वो बेचा जाता है, तो ये बहुत बढ़िया मेथड है टू प्रिपेयर फिनॉल एंड एसीटोन, क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट एसीटोन है वो भी लैब में हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
डाइज़ोनियम सॉल्ट से बहुत आसानी से फिनॉल बनाते हैं। कैसे? डाइज़ोनियम सॉल्ट को H2O यानी गर्म पानी के साथ बस ट्रीट करना है। H2O के साथ हम वार्म करते हैं तो बन जाता है फिनॉल। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ये तीनों ही रिएक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है कि जब हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं ब्रोमीन सॉल्यूशन से, तो 3 पोजीशन पे, यानी अगर यहाँ से मार्क करोगे तो ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। क्या बन जाता है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। तो अगर फिनॉल को हम ट्रीट करते हैं ब्रोमीन सॉल्यूशन से, तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। लेकिन अगर हम चाहें कि Br सिर्फ एक ही जगह पे आए, सिर्फ पैरा पोजीशन पे, तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन को लो टेम्परेचर पे कराते हैं और एक्वस मीडियम ना यूज़ करके हम कार्बन डाइसल्फाइड लेते हैं सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है, OH कैसा ग्रुप है? OH इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इस केस में जब हम कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन में जब हम रिएक्शन कराते हैं, तो उसका एक्टिविटी कम हो जाता है और सिर्फ एक जगह पे ब्रोमीन आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि ब्रोमीन के साथ अगर रिएक्शन हम करा रहे हैं एक्वस मीडियम में, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा। और अगर CH2 एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं एट लोअर टेम्परेचर, तो सिर्फ एक जगह पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होगा, सॉरी एक मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा। ये फाइल थोड़ा सा बड़ा है, लेक्चर भी थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट तुम लोग एक बार दो बार इसको सुन लोगे तो ये सारा टॉपिक इसमें कवर्ड है। कहाँ चला गया? रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। एक मिनट। फाइल थोड़ा सा बड़ा हो गया है इसलिए शायद हैंग कर गया। हम्म So next is aldehyde and ketone. So this is formaldehyde, acetaldehyde, acetone and benzaldehyde. इसका दूसरा नाम है मिथानल, इथानल, प्रोपानॉन। तो ये नाम जरूर याद रखना, रिएक्शन में बहुत बार पूछा जाएगा व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विद और व्हेन एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विद। तो चूंकि नाम से रिएक्शन पूछा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये सब नाम जो कुछ सिंपल कंपाउंड्स हैं उसका नाम याद रख लेना। ये प्रिपरेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं। ये प्रिपरेशन भी एक बार तुम लोग ऐसे इसको देख लेना, बट मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है ये। देन है रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ न्यूक्लियोफाइल। तो CO में अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं तो ऐसे एडिशन होगा कि न्यूक्लियोफाइल चूंकि नेगेटिव चार्ज है, तो वो कहाँ ऐड होगा? कार्बन पे जहाँ पॉजिटिव चार्ज है। और H कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन पे। तो एक एग्जाम्पल है HCN का। HCN अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा? CN जाएगा यहाँ और H जाएगा O पे, तो ये बन जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रीन, क्योंकि इसमें OH है और CN लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम होता है साइनोहाइड्रीन।
नेक्स्ट है एडिशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म हेमी एसिटल एंड एसिटल। अगर अल्कोहल ऐड करेंगे इसमें तो क्या करोगे, इसमें ओ आर पार्ट जो है, ओ आर नेगेटिव पार्ट है, तो एच को भेज दो यहाँ, एच कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पे, और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो ये एडिशन हो जाएगा। एक बार और अगर अल्कोहल ऐड होता है तो ये कंपाउंड बनता है, इसको हम एसिटल बोलते हैं। और ये इस एसिटल में क्या है, दो ओ आर ग्रुप है ना, ओ आर प्राइम ग्रुप दो है, यहाँ तो एक ही है। तो हेमी वर्ड का यहाँ पे क्या है, ये एसिटल का भी आधा ही हुआ। अगर इसको हम एसिटल बोल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल, क्योंकि इसमें ओ आर पार्ट एक ही ऐड हुआ है। सेकंड होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो कि अमोनिया डेरिवेटिव में जी क्या है, जी कोई एक ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे रिएक्शन होता कैसे है, यहाँ से H2 और ये ऑक्सीजन निकल जाता है H2O बन के, और बाकी सिंपली सिर्फ हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से देखो H2O जब हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड N और G कोई ग्रुप है। तो ग्रुप कौन सा ग्रुप है, जैसे NH3, NH3 में G क्या होगा, अगर NH3 को इसके जैसा हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, NH2 और H, यही हो जाएगा। NH2G के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे अमोनिया को। तो H2O अगर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NH। सिमिलरली अगर हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन है तो यहाँ से क्या करोगे, H2O निकाल दोगे, तो ये CH3 C CH3, ये पार्ट तो सबस्ट्रेट से आ रहा है, डबल बॉन्ड N OH, OH जो ग्रुप है यहाँ पे, जो OH है वो क्या है, ये G ग्रुप है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। तो ये जो कंपाउंड है ये है ऑक्साइन और ये है इमाइन। तो ऐसे कोई भी हम रिएक्शन अगर दिया जाएगा अमोनिया डेरिवेटिव का तो हम ऐसे ही इसको ऐड करके लिख सकेंगे। देन दिस इज आयोडोफॉर्म टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर में भी क्वेश्चन में आ सकता है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर मिथाइल कीटोन्स, यानी CH3CO ग्रुप का ये टेस्ट है। ये वही कंपाउंड इस टेस्ट को देता है जिसमें CH3CO ग्रुप होगा। सो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग CH3CO ग्रुप on heating with alkaline solution of iodine give yellow precipitate of CHI3। ये जो CHI3 है वो आयोडोफॉर्म है, ये यही येलो प्रिसिपिटेट होता है, येलो प्रिसिपिटेट। ये किसका कंफर्मेशन है कि कंपाउंड में CH3CO ग्रुप है। तो क्वेश्चन ये होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो देखेंगे कि हम किस में CH3CO ग्रुप है, HCHO में है क्या, HCHO में तो नहीं है CH3CO ग्रुप। CH3CHO में है क्या, हाँ इसमें तो है, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। CH3CO CH3 का क्या स्ट्रक्चर है, ये है स्ट्रक्चर। इसमें CH3CO है क्या, हाँ है, तो ये भी देगा। इसमें देखो CH3 CH2 CO CH3, इसमें CO CH3 है क्या, है, यहाँ पे CO CH3 है। ये बाएं रहे दाएं रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, CO CH3 होना चाहिए, तो ये भी देगा। इसमें देखो दोनों तरफ कहीं भी CO CH3 नहीं है, CH3 CH2 CO CH2 CH3, तो यहाँ तो कहीं पे भी CO CH3 नहीं है, इसीलिए ये टेस्ट नहीं देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आयोडोफॉर्म टेस्ट। देन पूरे आज के लेक्चर में अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी अगर हम प्रायोरिटी दें कि सबसे इम्पोर्टेंट कोई क्या चीज़ है, तो वह है एल्डोल कंडेंसेशन। तुम लोग +2 में ये इम्पोर्टेंट तुम लोग को समझाया गया होगा, BSc जब पढ़े होगे वहाँ पे भी समझाया गया होगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन में दो फंक्शनल ग्रुप बनता है फाइनली प्रोडक्ट में, एक कार्बोनिल कंपाउंड और दूसरा OH।
चूंकि ये दो फंक्शनल ग्रुप के कारण इसको बोला जाता है एल्डोल, यानी इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और उसमें ओल भी है, यानी अल्कोहल भी है। सो इसके कारण इसको बोला जाता है एल्डोल। यहाँ पे हम पूरा डिस्क्राइब कर दिए हैं मैकेनिज्म के साथ। तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो ये हूबहू इतना ही कुछ डिस्क्राइब कर देना है। ये काफ़ी डिटेल में हम बता दिए हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या है। इसमें लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन हो सकता है और इसमें प्रोडक्ट लिखने का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लें। So when acetaldehyde reacts with dilute sodium hydroxide at room temperature, a dimerization takes place. Dimerization का मतलब क्या होता है कि दो जो मॉलिक्यूल है वो आपस में मिल जाता है, producing 3-hydroxybutanol. Since 3-hydroxybutanol is both an aldehyde and an alcohol, it has been given a general name aldol, and reactions of this type are called aldol reaction. जरूरी कंडीशन क्या होता है कि इसमें हम एक एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं और साथ में लेते हैं डाइल्यूट NaOH। मैकेनिज्म में क्या होगा कि ये जो OH माइनस है वो क्या करता है कि यहाँ जो CO ग्रुप है उसके बगल वाला, चलो इसको लिख के समझाते हैं। इस CH3 को हम ऐसे लिख दिए, तो ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को OH माइनस सबसे पहले निकाल लेगा। तो निकाल लेगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन है कि ये एसिडिक होता क्यों है, क्योंकि ये जो कंजुगेट बेस बनता है वो CO के साथ कंजुगेशन में होता है, आसानी से ये स्टेबिलाईज हो जाता है, इसीलिए ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो सबसे पहले बनता है इनोलेट आयन, यानी कार्बन पे ही जो नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं ये रेजोनेंस स्टेबिलाईज होके, यहाँ देखो इन है तो इन और OH रहता है तो इसको हम बोलते हैं इनॉल, और ये इनॉल का नेगेटिवली चार्ज फॉर्म है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इनोलेट। इसको ऐसे समझो कि अगर ये रहता CH2 डबल बॉन्ड CH OH तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन प्लस ओल है ना, इसलिए ये इनॉल है। और इसी से जब हम इस H प्लस को हटा के यहाँ नेगेटिव चार्ज कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, इनोलेट। तो ये याद रखना है। तो पहला स्टेप में क्या हो रहा है, पहला स्टेप में हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब चूंकि इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे। पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, ये जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है यहाँ का ये कार्बन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर खुल जाएगा, तो ये O माइनस बन गया। अब ये O माइनस वाटर जो सॉल्वेंट के तौर पे है वहां से एक H प्लस ले लेगा तो ये बन जाएगा OH। तो इस तरीके से ये रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बना, CO जो है वो कन्वर्ट हो गया OH में। अगर हम लोग थोड़ा भी इसको हीट कर दें, यानी ये जो प्रोडक्ट बना है एल्डोल प्रोडक्ट, इसको अगर हम हीट कर दें तो उससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। कैसे वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, OH माइनस जो है वो यहाँ पे अटैक करता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और ये OH माइनस यहाँ से निकल जाता है। और बनता क्या है, बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये जरूर लिखना एग्जाम में आए तो यहाँ देखो ये है फंक्शनल ग्रुप, ये है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जहाँ अटैच्ड है उसके बगल वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है और उसके बगल वाला कार्बन जो है वो बीटा कार्बन है। इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाता है और हम कंपाउंड को बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। यहाँ पे एल्डिहाइड है इसीलिए एल्डिहाइड लिख रहे हैं, अगर यहाँ पे H के जगह पे एक R होता तो हम लिखते अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन।
देखो कुछ एग्जाम्पल देखो। अगर हम CH3CHO ले रहे हैं और देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, हीटिंग भी दिया गया है, तो अगर हीटिंग दिया जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ तक प्रोडक्ट बना देना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन तक। अब क्वेश्चन है कि ये प्रोडक्ट बनता कैसे है। बनाना बहुत आसानी से है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। एक बार ये प्रैक्टिस कर लेना तो फिर बहुत आसानी से ये बनने लगेगा। देखो क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है और दूसरा एक और मॉलिक्यूल ऐसा ही ले लो, उसको भी ऐसे ही लिख दो, CH2। CH2 के फॉर्म में क्यों लिखने बोल रहे हैं, क्योंकि वहां से हम लोग को वाटर निकालना है। वाटर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ये निकाल दो वाटर, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3। सी के साथ लगा हुआ है एक H और फिर लगा हुआ है उसमें एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये आ गया डबल बॉन्ड और ये CHO, तो ये है प्रोडक्ट। सिमिलरली CH3CH2CHO में क्या करेंगे, वैसे ही काम करना है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। CHO में फिर से वैसे ही करो, ऐसे लिख लो। अब खोजना है कि इसमें अल्फा कार्बन है कौन सा। ये देखो, ये है CO, तो उसके बगल वाला जो कार्बन है वो है अल्फा कार्बन, तो जब हम लिखेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे, CH2। जो अल्फा कार्बन है उसी को ऑक्सीजन के सामने रखना है। ये देखो CHO CH2 CH3, हम इसको घुमा के लिख रहे हैं। क्यों घुमा के लिखना है, क्योंकि जो अल्फा कार्बन है वहां से H2 निकलता है, वही H2O बनाने में काम आएगा, तो यहां से बना दो इसको ऐसे। प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, C के साथ लगा देंगे एक CH3 और ये CHO। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस कर लेना है कि अलग अलग हम लोग जब प्रोडक्ट लेंगे तो क्या बनेगा। यहाँ देखो हीटिंग नहीं लिया गया है, तो हीटिंग अगर हम नहीं करेंगे तो एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, और हीटिंग करेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब है कि H2O निकाल देना है। नेक्स्ट होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं, दो अलग अलग एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं, यानी यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट बनेगा। कितना प्रोडक्ट बनता है, चार प्रोडक्ट बनता है। कैसे, जो चार प्रोडक्ट बनता है वो 1+1 बनता है, 2+2 बनता है, 1+2 बनता है और 2+1 बनता है। इसको हम समझा रहे हैं, लेकिन चारों प्रोडक्ट तुम लोग को लिखना पड़ेगा अगर क्रॉस्ड कंडेंसेशन आया तो। ये समझो कि 1+1 का मीनिंग क्या है, कि 1 के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, यानी ऐसा कुछ। ये हम निकालेंगे तो क्या बनेगा, CH3। अच्छा यहाँ हीटिंग भी कर दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये मीनिंग हुआ 1+1 का। 2+2 का मीनिंग क्या हुआ, कि CH3 CH2 CHO खुद ही अपने आप के साथ रिएक्ट कर रहा है, CH3 CH2 CHO के साथ। क्या बनेगा प्रोडक्ट, ऊपर में प्रोडक्ट अभी हम लोग देखे थे, ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। ये है दूसरा प्रोडक्ट। तीसरा प्रोडक्ट क्या है, 1+2। 1+2 का मीनिंग क्या है, 1+2 का ये मीनिंग है कि 1 का CO और 2 का H2। 2 का H2 मतलब उसको घुमा के लिखना पड़ेगा ना ऐसे, 2 का H2 यानी ऐसे। अब बनाओ प्रोडक्ट,
तो क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CHO। ये है 1+2 का मीनिंग। और 2+1 का मीनिंग क्या है? 2+1 का मीनिंग है कि 2 का O CH3 CH2, 2 का O और 1 का H2। तो क्या बना प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो ये देखो, ये 4 प्रोडक्ट बनता है जब क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन होगा, यानी दो अलग एल्डिहाइड या एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन के बीच में जब रिएक्शन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस्ड एल्डोल रिएक्शन। और अगर हम हीटिंग करते हैं तो उस केस में होगा वो क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। सो नेक्स्ट इज कैनिजारो रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट है वैसे ही, चलिए डिलीट करना भूल गए। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ होता है एल्डिहाइड का डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये एल्डिहाइड का ही रिएक्शन है, कीटोन का रिएक्शन नहीं होता। एल्डिहाइड डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या है, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और रिडक्शन करते हैं तो बनता है अल्कोहल। तो HCHO को OH माइनस के प्रेजेंस में हम रिएक्ट कराते हैं और फाइनली H+ से उसको ट्रीट करते हैं तो बनता है मिथानॉल और फॉर्मिक एसिड। सिमिलरली बेंजल्डिहाइड के केस में बनता है बेंजाइल अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कैनिजारो रिएक्शन है ये ऐसे एल्डिहाइड का रिएक्शन होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। यानी यहाँ देखो, इसके बगल वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये ऐसे कंपाउंड का रिएक्शन है। HCHO देखो, HCHO, इसमें तो अल्फा कार्बन है ही नहीं। तो अल्फा कार्बन अगर नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो कैनिजारो रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड का रिएक्शन होता है जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। और क्या करते हैं, जो भी एल्डिहाइड दिया रहेगा उसको एक बार ऑक्सीडाइज करेंगे और एक बार रिड्यूस करेंगे। तो अल्कोहल को रिड्यूस करोगे तो बना, सॉरी, एल्डिहाइड को रिड्यूस करो तो बनेगा अल्कोहल, और ऑक्सीडाइज करो तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये क्या किया जा रहा है, दो अलग अलग एल्डिहाइड ले लिया गया, एक बेंजल्डिहाइड और एक फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पे जो बेंजल्डिहाइड वाला पार्ट है वो रिड्यूस हो जाता है और फॉर्मल्डिहाइड, कुछ गलत लिख दिया है, करेक्ट करने दो, ये रिड्यूस हो जाता है और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। जो फॉर्मल्डिहाइड है इसका क्या होगा, इसका होता है ऑक्सीडेशन और इसका हो जाता है रिडक्शन। ये याद रख लेना कि बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड में HCHO का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसका रिडक्शन हो जाएगा। ये कहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेनेशन में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन तुम लोग के लेवल का नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने को आ सकता है, ऐसे उसका भी चांस नहीं है। चलो इसको हटा दो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सो नेक्स्ट इज बेंजोइन कंडेंसेशन। ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी हटाओ। ये सिलेबस में है, चूंकि हम पूरा सिलेबस कवर किए हैं इसीलिए यहाँ हम इसको कंसीडर कर लिए हैं, बट इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसको बिना मैकेनिज्म के मदद से ये एक्सप्लेन नहीं हो सकता। ये कंप्लीट द रिएक्शन में आ सकता है कि एल्डिहाइड कीटोन को जब हम रिड्यूस करते हैं तो CO के जगह पे वो क्या हो जाता है, CH2 हो जाता है। दो तरह का रिडक्शन हम यूज करते हैं, ZnHg और HCl के साथ, इसको हम क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। और हाइड्राजीन, NH2 क्या है, यह है हाइड्राजीन।
हाइड्रोजन OH माइनस के साथ जब हम हीट करते हैं तो उसको बोलते हैं उल्फ किस्नर रिडक्शन। जैसे कि ये समझो, क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि साइक्लोहेक्सानॉन को साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ तो कंप्लीटली रिड्यूस कर रहे हैं ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ZnHg ZnHg प्लस HCl या हाइड्रोजन OH माइनस हीट। तो इससे ये हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये रहे, इससे अल्कोहल कैसे बनाओगे, तो ये जो हम लोग पहले पढ़े थे, क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा कि हम यूज करेंगे NaBH4 इन मिथानॉल या इथानॉल। तो अगर कंप्लीटली रिड्यूस नहीं करना है तो हम NaBH4 यूज करेंगे, और कंप्लीटली रिड्यूस कर देना है यानी ऑक्सीजन को भगा देना है तो हम यूज करेंगे या तो क्लीमेंसन रिडक्शन या उल्फ किस्नर रिडक्शन। कहाँ? ये सिर्फ रिएक्शन में कंप्लीट द रिएक्शन या गिव द मिसिंग प्रोडक्ट वैसे क्वेश्चन में ही ये आएगा। मिरविन पॉन्डो वर्ले रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी हम छोड़ दे रहे हैं। So this is the complete portion of ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन GE2। तो इसको तुम लोग एक बार पढ़ लो। इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम मार्क कर दिए हैं। आई होप कि इससे तुम लोग को कुछ सेलेक्टिव पढ़ने में मदद मिलेगा। तो जहाँ जहाँ पे भी हम बताए हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है उसको ज़रूर पढ़ना। जो बहुत जिसको हम इग्नोर कर दिए हैं वो तुम लोग के लेवल का नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं है। चलो तो ख़त्म करते हैं हम लोग। आई होप द लेक्चर विल बी बेनिफिशियल टू यू। थैंक यू।